Good morning, dear students. Welcome to PN Amarsi e-learning classes. Things to know. See the picture and notice the components required to get tea as the end product. 1 cup of tea cost rupees 750 to the owner of a hotel and he earns rupees 2 rupees 50 paisa as the profit. What will be the selling price? तो बच्चों यहाँ पर एक कप की कीमत 7.5 रुपये बताई है एक होटल में और उसे मुनाफा 2.5 रुपये मिलता है तो वो कितने रुपए में एक कप चाय बेचता होगा. Suppose the cost of milk increases by rupees 2 per liter. What will be the original cost and selling cost of the cup of tea? अगर दूध का भाव 2 रुपया लीटर बढ़ जाता है तो ओरिजिनल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट एक कप की चाय की क्या होगी. What will be the effect on your household budget if the price of sugar increases by rupees 1 per kg? What will be the effect on your household budget if the price of gas cylinder increases by rupees 50? What will be the effect on bus and the school bus fare if the price of diesel increases by 2 rupees 50 paise per liter? तो बच्चों यहाँ पर बताया है कि अगर चीनी का दाम 1 रुपया पर केजी बढ़ जाता है तो हमारे जो घर का बजट होता है उस पर क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या असर होता है. तो अगर हमारे घर में 10 केजी चीनी सपोज आती है और उस पर 1 रुपया बढ़ जाता है तो 10 रुपये पर केजी भाव बढ़ गया. इस तरीके से तो हमारे हाउस होल्ड के बजट के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ेगा. सेकेंड उसमें बताया है गैस सिलेंडर का बजट हाउस होल्ड पर क्या इफ़ेक्ट करता है अगर 50 रुपीज़ उसमें इंक्रीज़ हो जाता है तो. सो हु इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ मिल्क, शुगर, गैस, डीजल एक्सेट्रा. तो ये इकोनॉमिक कंडीशंस जो होती है ये सब कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पर डिपेंड करती है, महंगाई जिसे हम कहते हैं. Our next part is about the economic activities or conditions are also classified on the basis of ownership. Ownership का मतलब क्या होता है, कौन किसका मालिक होता है. तो first one is government ownership. The industries which are owned by the government and run under the policies of the government are the public sector industries. For example, Bhilai Steel Plant, Bharat Heavy Electricals Limited, BHEL, Oil and Natural Gas Corporation, ONGC, etc. तो ये सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ है. जो ONGC, BHEL, ये सब इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट चलाती है. सेकेंड, प्राइवेट ओनरशिप. The industries which are owned and run by private owners are termed as private sector units. For example, Tata Iron and Steel Company Limited, Tesco, Reliance, Torrent, Cadila, etc. ये सब प्राइवेट कंपनीज है, इनके ओनर भी खुद इसको रन करते हैं. थर्ड पार्ट दिया है जॉइंट सेक्टर. जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप एंड प्राइवेट दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट का पावर थोड़ा ज़्यादा होता है. देर आर सर्टन लिमिटेशंस इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. जनरली वी फाइंड लेस डेडिकेशन एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स वर्क एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स. To control this and to generate sufficient amount of required capital, the private sector units are asked to join the public sector units. This is known as the joint sector. In this, the government enjoys a greater control. फोर्थ सेक्टर है कोऑपरेटिव सेक्टर, मतलब लोगों के साथ मिलकर बनाई हुई कंपनी.
There are many people in the country who are not economically very sound. They are not in the condition to start their own small or cottage industries. Such people make a cooperative society group where they undertake the manufacturing and selling process. The units that are started with cooperation of a group of people are known as cooperative sector units. For example, dairy, sugar mill, etc. तो बच्चों, हमारे पास काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ग्रुप बनाकर एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। ऐसी यूनिट्स को कोऑपरेटिव सेक्टर कहा जाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, दूध का बिजनेस करना या शुगर मिल चलाना। ये सब एक छोटे सेक्टर पर चालू करना, बिजनेस करना कहा जाता है कोऑपरेटिव सेक्टर। देन दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो फर्स्ट पार्ट दिया है उसके अंदर कांता, जो कि वर्क कर रही है एक ऑफिस में। कांता वर्क्स इन एन ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM. She gets the salary at the end of every regular month. Apart from salary, she is eligible for the benefit of pension and PPF, मतलब PF. She also receives medical allowance and other allowances too. Kanta gets the salary for Sunday too, which is a holiday for her. She has been given the appointment letter which states that the rules and regulations for job. Thus, Kanta works in an organized sector. तो यहाँ पर बच्चों बताया गया है, कांता जो है वो एक ऑफिस में जॉब कर रही है। रेगुलर उसे मंथ के एंड में सैलरी मिलती है। इवन उसे बेनिफिट्स, फ़ायदे पेंशन के, प्रोविडेंट फंड के भी मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस मिलते हैं। अगर वो संडे को एक्स्ट्रा काम करने के लिए ऑफिस में जाती है तो उसका भी उसे सैलरी पे किया जाता है। इवन उसे जब जॉब ज्वाइन किया उसने तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं। तो कांता जो है वो एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर काम कर रही है। अब सेकेंड पार्ट आ रहा है कमल। कमल जो है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम कर रहा है। कमल इज द नेबर ऑफ कांता। ही वर्क्स ऑन डेली वेजेस इन अ ग्रोसरी शॉप। तो कमल जो है वो एक ग्रोसरी शॉप में काम कर रहा है, किराने की दुकान में, जहां उसे डेली वेजेस पे पैसे मिलते हैं। He goes to the shop in the morning 8 and works till 9 in the evening. He does not get any allowance any apart from the daily wages. He is not paid for the day he does not go to work. He does not get any paid holiday. He has also not received any appointment letter. His boss can tell him to leave the job at any point of time. Thus, Kamal works in an unorganized sector. तो कमल जो है डेली वेजेस पर ग्रोसरी शॉप में काम कर रहा है, सुबह 8 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक। यहाँ तक कि उसे कोई एक्स्ट्रा वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। इवन अगर वो जॉब पर एक दिन नहीं जाता है तो उसके पैसे काट लिए जाते हैं। एक्स्ट्रा पैसे भी उसे हॉलिडे के नहीं मिलते हैं, ना ही उसे कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिला हुआ है। बॉस, उसका जो ग्रोसरी शॉप का जो बॉस है वो कभी भी उसे जॉब कर छोड़ने के लिए कह सकता है। सो दस ही वर्क्स इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। Think, do you see any difference in the employment conditions of Kamal and Kanta? Yes, हमें दोनों के बीच में डिफरेंस दिखता है। कांता जो है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड स्मूथ जॉब कर रही है, और कमल जो है उसे उसका जो जॉब है उसमें उसे काफ़ी हद तक कोई सेक्टर जो उसका ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, सही तरीके से वह काम नहीं कर पा रहा है। ये डिफरेंस हमें उसमें दिखता है। थिंग्स टू नो, the government has made certain rules and regulations for the unorganized sector units, but the owners in the unorganized sector do not implement them in reality. तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे रूल्स बनाए हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए,
लेकिन ओनर जो मालिक होता है वह उस पर अमल नहीं करता है, जिसके कारण उनका जो सेक्टर है वो ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड ही रहता है। देन नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक पैसों में कितनी छूट दे रखी है। The government has brought about certain changes in its economic policy so as to maintain its pace with the developing world and make India a developed nation. In accordance, the policy of liberalization was adopted in the year 1991. According to this policy, certain regulations related to manufacturing and trade and commerce were removed. Duties and tax relaxations on import exports were announced. The process of establishing a new manufacturing unit was made simpler. As a result, India has been able to keep pace with the world in terms of production and trade and commerce. It has also generated more employment opportunities. तो आज देश भर में इंडिया जो है काफ़ी डेवलपिंग नेशन है। काफ़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, रेगुलेशंस बनाए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड व्यापार के लिए ड्यूटीज़ टैक्स, कोई भी चीज़ आप बाहर से मंगवाते हो उस पर ब्याज क्या लगेगा, ये सब जो है गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में बताया गया है। तो उसका काफ़ी असर लोगों के रोज़गार भी मिल सके, यह चीज़ गवर्नमेंट ने काफ़ी मौके निकाले हैं। सेकेंड पार्ट है प्राइवेटाइजेशन। तो बच्चों, चीज़ों को प्राइवेट कंपनीज बेच देने की बात करती है। पब्लिक वेंचर्स मतलब कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं गवर्नमेंट के अंडर में, वो किस तरीके से चल रहे हैं। आफ्टर द इंडिपेंडेंस मेनी पब्लिक वेंचर्स, large manufacturing projects owned by the government, were started by the government of India. With the passage of time, these ventures made less profit and incurred loss. Many public ventures had to be closed down for this reason. This left an impact on our economic condition. तो बच्चों, गवर्नमेंट के अंडर में जब ये प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम निकलता गया प्रॉफिट जो था वो कम हुआ, जिसके कारण नुकसान हुआ। तो उन लोगों को ऐसे पब्लिक वेंचर्स, ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट खुद चलाती है, वो उनको कई बार बंद करने पड़ते हैं किसी ना किसी कारण से, जिसका असर जो है हमारे इकोनॉमिक कंडीशन, अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। द वर्कर्स became united, but the industries suffered big losses. On the other side, the emphasis on quality increased around the world. The private sector started making more profit. All these circumstances motivated privatization. Government started showing inclination towards private sector. The joint sector is a part of the process of privatization. तो हमने देखा कि कैसा असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर। वर्कर्स जो होते हैं, जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री जो है उन्हें नुकसान होता है। अब दूसरी तरफ हम देखें, द एम्फोसाइजेस ऑन क्वालिटी इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इंक्रीज तो हुआ है क्वालिटी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में। क्यों? तो वो प्रॉफिट्स ज़्यादा बनाती हैं और इसीलिए लोग जो है वो ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर की तरफ ज़्यादातर जाते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की तरफ ध्यान दिया है और जॉइंट सेक्टर जो है वही इसका प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन का। देन नेक्स्ट दिया है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड बिकमिंग वन और मोर or countries coming closer to one another. Due to the globalization, any country of the world can trade with another country easily. अगर हमें व्यापार करना है तो देश एक दूसरे से कनेक्ट होकर कर सके। It integrates the markets and production units of various countries. The process of growing international relations and the integration of markets across the world
is globalization. The unique revolution in the field of information technology has stimulated globalization, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन established in 1995. CE is working towards promoting, fostering globalization. तो बच्चों अभी हमने पढ़ा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। एक देश जो है दूसरे देश के नज़दीक आकर किस तरीके से काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है, सर्विस कर रहा है, यह सब हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा। अब उसका असर क्या होता है, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Employment opportunities have increased in the service sector due to the advent of the information technology. Employment मतलब लोगों को नौकरियां मिलने लगी है वो सर्विस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। देन फ़ोन, fax, mobile, email, internet, video conferencing, etc. are some of the revolutionary tools of information technology which transfer information faster and at low cost. This has made the economic development of our country faster. तो अर्थव्यवस्था की डेवलपमेंट जो तेजी से बढ़ी वह फ़ोन, फैक्स, मोबाइल, इंटरनेट, इन सब टूल्स को यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन जो भी है जल्दी पहुंचाने के कारण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट की गई है ग्लोबलाइजेशन पर। Then the multinational companies started projects in different countries which have proved to be profitable for the host nation. For example, Ford Motors has a car manufacturing plant in India where cars are manufactured not only for India but for other countries also. Apparently, India receives the advantage of this venture. Similarly, the big companies of India such as Tata Motors, Infosys, Asian Paints, Parle, etc. have export their commodities in the foreign markets. Then last part, consumers get commodities of a very good quality and at a low price due to the competition. कंपटीशन के आने के कारण जो है कंज्यूमर्स जो है उन्हें गुड क्वालिटी मिलने लगी है कम दामों पर। फॉर एग्जांपल चाइना मेड टॉयज हाउ बिकम वेरी पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट ड्यू टू इट्स लो प्राइस एंड अट्रैक्टिव डिजाइंस। In 1 year only, the Chinese toys have replaced the Indian toys in 70 to 80% shops. Now, the toys in the Indian markets are cheaper than before. Do you know the reason behind this? Due to the international trade, Antarashtriya Vyapar, the Chinese toys came in the Indian markets and proved to be better than the Indian toys. However, the Indian toy manufacturers and traders have incurred losses. So, globalization at times causes loss to the cottage industries also. तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो कि चाइना के जब टॉयज इंडियन मार्केट्स में ज़्यादा बेहतर पाए गए तो 70 to 80% इंडियन टॉयज का रिप्लेसमेंट हो गया और चाइना के जो टॉयज थे उनका डिमांड बढ़ गया जिसके कारण इंडिया में जो इंडियन टॉयज मैन्युफैक्चर हो रहे थे व्यापार हो रहा था उनका उसमें नुकसान हुआ। तो कई बार ग्लोबलाइजेशन जो है वो नुकसान भी करता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।